Welcome Lenjing ji Thank you. in Sikkim. So how you are feeling? I'm feeling so good and I'm feeling so fortunate enough कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में आऊँ और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूँ. बहुत इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. सो स्पेशल थैंक्स टू आदित्य सर. आप लोगों ने मुझे याद किया, अपने वीसी से परमिशन लिया और मुझे बुलाया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. आई एम फीलिंग वेरी गुड. No, so I think this is your first time giving lecture to university student. University, yes. First time, University is going to be my first time. Okay. So all the best, Lenjing ji. Thank you so much. Excited to have you with us today. I would now request Dr. Aditya Rai, Chairperson Career Counseling Cell, under the aegis of which this program is being held, for the welcome address and introduction of the speaker. Sir, please. Hello. Good morning, dear students, respected dignitaries, Honorable Vice Chancellor Dr. D.C. Agarwal, Sir, respected Registrar Professor Karma Sonam, Sir. I would like to welcome our guest, Mr. Lenjing Doming from Arunachal Pradesh. I also would like to welcome students from Faculty of Humanities, Social Sciences and Liberal Arts. Also students from Tadung Government College and Burtuk Government College. So actually the main motive of coming up with this program is the main objective of university is not only classroom teaching. We also would like to connect our students with the outer world. Our students should be abreast with what is happening in the outer world. So Mr. Lenjing Doming will be the right person to act as the catalyst and to break the ice. And managing this kind of program is not very easy. So I would like to thank VC sir and Registrar sir with a round of applause, because without the support of the management, it will never be possible to come up with this kind of program. I also would like to, even though this is not a thanking speech, but it would not be very convincing if I will not thank Mrs. Srijana Sharma ma'am. She was always a support, and I would like to thank Sumit Agarwal sir also. He was there with me till 9 p.m. yesterday planning for this program. So I'm very much sure today's program our students will be connecting with Mr. Lenjing Doming's experience. So to introduce about him, he has done MA in Political Science. Normally students, what they do after getting degrees, they go for a conventional jobs. But he chose another job as a vlogger. He is not only a vlogger, he is an influencer. When we talk about influencing somebody else, there is a bad influence and good influence. So there are so many influencers, but he is in the category of good influence. Because apart from vlogging, he has done so many charities, social work. He is also a Joe Stock speaker. He is a very good singer. So we would like to welcome him with a very good round of applause. Thank you, Mr. Doming, for coming from such a far-off place. Thank you. I would now request our Honorable Vice Chancellor sir and respected Registrar sir to please come up on the stage for the felicitation of our guest. I would also like to request our guest today, invited speaker, Mr. Lenjing, on the stage. Influencer and a bad influencer, I am sure I can also influence you a bit. I should also be influencer to you, and you see, you always have a role model in your life. Whenever you are born now, then your first role model for you is your mother. Then second role model is your teacher. Then third role model is your father. Unfortunately, father comes little later. Because by the time you grow, you think your father is the best man in the world and nobody can defeat your father.
then later you come across somebody in your life who becomes your influencer. It may be a professional, it may be a teacher, it may be a businessman, it may be an entrepreneur, it may be anybody. So we are always inspired or influenced by the environment around you. That's why it is said, if you are in a right environment, you will grow better. You must choose good friends and a good environment and a good company. That is very, very important. That is in your hand. Choosing parents, not in your hand. Choosing teachers, to some extent, it is in your hand. But choosing your environment in which you wish to live and choosing your friend is very, very important. And that influences your path of journey and success. Second thing I always feel, and I always tell, we are all born winners. You are born to win. That should be a belief. You may fail, but you are not a failure. You may win, but you may not be a winner. You can be a winner only when you win by fair means, by ethics, by values, by morals. There are many successful people, but they are not winner. Winning and success are two different things. If you are successful by compromising your morals, compromising your values, you are not a successful man. You are not a right influencer. You are a wrong influencer. Second thing, I will like to tell you something about my personal life. As I always say, you can achieve more than what you can conceive today. In other words, today whatever are your dreams, probably you can achieve more than that. Here I will like to tell you, just before that, when we were interacting in my office, I told, when I was small child, I had a very small dream. That was ultimate for me. I just wanted to be a doctor and postgraduate and practice in a small town and earn little extra money. That was my ultimate dream. But was it a right dream? Was that the only capacity I had? No. I could achieve much more than what I had dreamt when I was of your age. That's why I say you can achieve more than what you can conceive today, what even you can think. So never ever limit yourself. Your limit is unlimited. The sky is the limit. Chase your dream. Set stiffer target. Compete with yourself. What you achieve, try to achieve more. You don't have to compete with others. You have to compete with yourself. You have to excel yourself. Every day you have to better and better and better. We are lifetime learner. It's not that you just finish your graduation and post-graduation and your life is over. No, that's the beginning. Though the parents tell, just complete your study, then you will not have to work hard. But the fact is that study period is the most enjoyable period. Actual hard work starts when you jump into the social life. So living is not very easy. Survival is not very easy. But also it is not very difficult. If you have right mindset, if you have a flexibility, if you have a adaptability. Everything doesn't come the way you wish to, what you want to. You may have to trek through hard time, difficult time. So the flexibility and adaptability is very, very important. In other words, keep a positive mind, positive frame of mind. You must learn a lesson from failure. You should see an opportunity in crisis, emergency, and adversity. You should not get discouraged. Oh, what is this? Every time I am in the thick soup, I am failing, I am not succeeding in my life. Every time crisis emerges, I am facing so many adversities. There is nothing. If you are willing, everything can be surpassed. You are privileged that you are part of such a great institution.
and you are getting such a great support from your parents and society. In our time, it was not like that. We had to fight, survive, and move forward. There was no emotional supports. So never we ever look for another shoulder. I always feel we are born winner and we are all strong. Don't make yourself weak. We do have emotions, but emotions should make you strong rather than weak. That is what message I want to tell you. I will tell you, I never wanted to be a doctor. I was very good in mathematics. I wanted to be a mathematics engineer. But my father said, there are already 3 brothers who are already engineers. You become a doctor. So that is the way your future was decided on those days. Mr. Lenzing to come up to the stage and share his journey with our students as a social media influencer, entrepreneur, social worker, and many more. So, sir, please, I welcome you on the stage. Hello. Thank you so much. नमस्ते सभी को, दिस इज लेंजिंग। और आप सभी का जोश बहुत कम लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप लोग बहुत दुखी लग रहे हो कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन का नाम है लेट्स टॉक सेशन। ये शायद हर साल में एक बार आता है, किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है। इस साल मुझे आदित्य सर ने, उसके बाद सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी यहाँ के स्टाफ है, सभी ने मिलकर मीटिंग की और मुझे यहाँ पे बुलाया, जिसके लिए आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड। पर्सनली मैं ऐसा फील नहीं करता कि मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं किसी कॉलेज में आऊँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत लेक्चर दूँ, बट स्टिल उन्होंने यहाँ के फैकल्टीज ने मुझे इस काबिल समझा। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड बहुत खुश हूँ कि पहली बार मुझे एक ऐसा मौका मिला कि इतनी दूर से आके, वो भी ऑल द वे फ्रॉम अरुणाचल आके यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ इंटरेक्शन करूँ या फिर कुछ स्पीच दूँ। तो मेरे बारे में सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। मेरा नाम है लेंजिंग दोविंग और मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश पासीघाट से, जो कि एक ओल्डेस्ट टाउन है पासीघाट का। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। और यूट्यूब, अभी तो फिलहाल यूट्यूब कर रहा हूँ, बट यूट्यूब के जर्नी में घुसने से पहले मैंने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सब आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और आज का जो टॉक आने वाला है मेरा बहुत ही कैजुअल होगा। जैसे आदित्य सर ने, वीसी सर ने जैसे बहुत फॉर्मली बोला ना, मुझे ऐसा बोलना नहीं आता है, तो मैं आई विल बी वेरी कैजुअल, जस्ट लाइक हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम लोग एज अ फ्रेंड। आप लोग मुझसे, मैं भी अपना बारे बताते जाऊँगा। आप लोग को अगर किसी चीज़ से क्यूरियोसिटी होगी तो मुझे आप लोग उसी वक्त रोक के आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग अपना हाथ खड़ा कर देना एंड माइक आपको दिया जाएगा। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम भी होगा काइंड ऑफ ये, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट। आप लोग जितना टाइम ले सकते हो ले सकते हो। मैं भी अपना जितना अपने लाइफ की जर्नी में आप लोगों को जितना इंस्पायर कर सकता हूँ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। वैसे सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इतनी इंस्पिरेशनल नहीं है। तो मैंने राय सर को भी पूछा था, सर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे कोई IAS ऑफिसर हो गया, कोई बड़ा बड़ा डिग्री होल्डर्स हो गया, उनको नहीं बुला के आपने मुझे क्यों बुलाया? तो सर ने बोला कि एट सच ए यंग एज आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, खुद को ऐसा लोगों के सामने बनाया कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको सीख करते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो वाई डोंट वी इनवाइट यू करके सर ने मुझे बोला। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। तब जाके मैंने सोचा कि हाँ, मैं आज स्पीच देने के लिए रेडी हूँ। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि मैं क्या बोलूँगा आप लोगों के सामने। और मेरा जो फील्ड है पढ़ाई से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, और शक्ल से आप लोग बहुत पढ़ाकू लग रहे हो ना तो पता नहीं कैसा होगा, तो इसलिए मुझे जज मत करना काइंडली, क्योंकि मैं बस यहाँ पे सोशल मीडिया से मैंने आज तक अपने लाइफ में क्या हासिल किया है वो बस बताने आया हूँ। और जितना भी अचीवमेंट आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे किसी न किसी को इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि जैसा वीसी सर ने भी पहले बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अभी मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हो
या फिर किसी इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहे हो या फिर डॉक्टर की फील्ड में कर रहे हो, तो आप लोग जाके बाद में डॉक्टर ही बनोगे। आपका अपना इंटरेस्ट होता है। लाइफ आप लोगों को बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। लाइफ में कुछ भी आ सकता है आप लोगों की लाइफ में कि आपको ये बनना था लेकिन आप ये बन गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग अपने लाइफ के बारे में बता देना चाहता हूँ। क्लास 9-10 को मैंने पढ़ाई किया था पुणे में दीदी के साथ। माई सिस्टर इज एन आर्मी, अभी वो एज अ कर्नल सर्व कर रही है। शी इज द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लेडी आर्मी ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड अभी वो फर्स्ट कर्नल लेडी ऑफिसर है पूरा नॉर्थ ईस्ट का। और एंड वो वहाँ पे अभी पोस्टेड है लेह में, लद्दाख के पास में लेह में। और लेह में वो हाईएस्ट मॉडरेबल रोड वो और उनकी टीम मिलकर बना रही है, मतलब पूरा दुनिया का हाईएस्ट मॉडरेबल रोड सोचिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मेरी दीदी होती तो आप लोगों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके जाती। तो मैं दीदी के साथ रहा था, क्लास 9-10 में पढ़ाई किया था, तो दीदी के साथ मैं बड़ा हुआ, आप ऐसा कह सकते हो। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आर्मी ऑफिसर है ना, तो स्ट्रिक्ट तो होते हैं वो लोग। तो शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत डिसिप्लिन सीखा। और मेन बात मैंने उनसे क्या सीखा कि मेहनत कैसे किया जाता है। और मेरी दीदी का जर्नी क्या रहा कि क्लास 9 में वो फेल हो गए थे, पढ़ाई में एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, क्लास 9 में वो फेल हो गए थे। एंड देन उसके लाइफ में टर्न आया कि क्लास 10 के बाद से उन्होंने इतना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया कि वो क्लास 10 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई थी उस टाइम। तो ऐसा करके उनके मेहनत को हमने देखा कि अगर दीदी एक एवरेज स्टूडेंट से जाके बाद में एक आर्मी ऑफिसर बन सकता है तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मेन दीदी से मैंने सीखा कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है। तो वो फिक्स उस समय चला गया। एंड देन मैंने साइंस लिया, क्लास 11 एंड 12 में साइंस पढ़ाई किया। एंड साइंस पढ़ने के बाद जब क्लास 12 मैंने पास किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत जैसे तैसे पास हुआ था। मैथ्स में 34 मिला था, और मैथ्स में 34 और बायोलॉजी में 60 कुछ था। ऐसा फिजिक्स में होगा मेरे लिए साइंस से आर्ट्स में आना, क्योंकि 11-12 का मेरे पास नॉलेज बिल्कुल नहीं था। तो 11-12 का नॉलेज नहीं होते हुए भी मैंने आर्ट्स ज्वाइन किया कॉलेज में। एंड फॉर्चुनेटली अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया अच्छे मार्क्स के साथ, फिर मास्टर्स किया और फिर बीएड किया। तो मैं 2019 को मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया था। जब 2018 में मैं बीएड कर रहा था तब मैंने क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था। उस समय मैं खुद भी बहुत छोटा था, अराउंड आई वाज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। अभी मेरी उम्र है 28 ईयर्स, मैं अभी भी यंग ही हूँ। तो इसलिए मैं शायद आप लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं हमारी एज में। तो वही 2019 के बाद से मेरी जर्नी, यूट्यूब जर्नी शुरू हुई। यूट्यूब जर्नी भी क्यों शुरू हुआ, क्योंकि मैं देखता था कि जितने भी यूट्यूबर्स बाहर के हैं वो लोग हमारे अरुणाचल में आते थे। और अरुणाचल इज़ अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट, आई मस्ट से। आप लोग भी एक बार आके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही शांति है, बहुत ही पीस है वहाँ पे। तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते थे। तो एक तो यूट्यूबर भी वहाँ से आने लगे, तो बाहर से आने लगे। उसके बाद वो लोग आए और अरुणाचल में वीडियो बनाए उन लोगों ने, और अरुणाचल में वीडियो बनाते हुए उन बहुत व्यूज़ लेके गए। तो देन आई रियलाइज कि मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करके, बीएड कंप्लीट करके, मैंने एक सोचा भी था कि मैं टीचर का जॉब करूँगा करके। तो प्राइवेट स्कूल में मुझे टीचिंग का जॉब मिला भी था, बट काइंड ऑफ अंदर से मेरा एक सेटिस्फैक्शन नहीं था अंदर से ना, कि मैं और भी कुछ लाइफ में बड़ा कर सकता हूँ। मतलब मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, टीचर इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेबल जॉब, बट मुझे कुछ और करना था। मेरा इंटरेस्ट कहीं और मुझे ले जा रहा था। थोड़ा सा मैं फिर से फ्लैशबैक में जाऊँगा। 2017 में मैंने एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, अरुणाचल आइडल बोल के। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं जीता नहीं, उसमें मैं अराउंड टॉप 7 तक आया था और मैं आउट हो गया था। तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि जब मैं आउट हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर और काम करना पड़ेगा और खुद को प्रूव करना पड़ेगा। तो इससे क्या साबित होता है कि जब तक आपको लाइफ में फेलियर नहीं मिलता है ना, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप लाइफ में आगे जाके कहीं कुछ चीज़, किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी चीज़ में हो, आप फेल हो जाते हो, तब आप उसको ऐसे लेसन लीजिएगा। आप डिप्रेशन में मत जाइएगा, आप उसको ऐसे लेसन लीजिएगा कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैं किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पहली बार में जिनको सक्सेस मिल जाता है ना, उनका क्या लॉस होता है बोलने से, कि
फर्स्ट टाइम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, उसी टाइम में उनको सक्सेस मिल गया, वो जीत गया, उस ट्रॉफी को मान लीजिए जीत गया, तो उस ट्रॉफी का वैल्यू उसके लिए उतना नहीं रहता है जितना फेलियर्स लोग के लिए रहता है। तो आप लोग ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी आपके लाइफ में कुछ फेलियर होता है वो आपको कहीं ना कहीं लेसन देने के लिए होता है। तो अभी उस टाइम का जो अरुणाचल आइडल का जो विनर था और मैं टॉप 7 तक ही पहुंचा था, उसके आउट हो गया था, तो अभी वो काइंड ऑफ गुमनाम सा हो गया है। बट मैं अभी भी जैसा तैसा करके ही सही, बट मैं अपने फील्ड में चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में हो, ब्लॉगिंग के फील्ड में हो, मैं टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैंने उस हार से कुछ सीखा। मैंने खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव किया कि मैं उसमें क्यों हारा, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ ऐसा करके। तो आप लोग भी फ्यूचर में अगर आप लोग के लाइफ में कभी डाउनफॉल आता है, जो कि नो डाउट आएगा ही आएगा, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाओ, डाउनफॉल हर किसी के लाइफ में आना ही है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। आप जब उस डाउनफॉल को फेस करोगे तब आपको लाइफ का रियल वैल्यू पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी होता है लाइफ में, अभी मुझे अपने ऊपर और काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं आगे जाके कुछ बन पाऊंगा लाइफ में। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में मान लीजिए आप ऑफिसर भी बन गए, तो आप बहुत काइंड ऑफ एक एरोगेंट ऑफिसर बनोगे, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करोगे, आपके अंदर एक एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि होता है ना ऐसा। तो वो चीज़ फेलियर से अगर आप पहले फेज में अपने लाइफ के फेलियर फेस करोगे तो नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी एक अच्छी बात होती है। फेलियर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मैं तो यही बोलूँगा। उसी से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई थी। तो मैं कमिंग बैक टू द प्रेजेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि बाहर के यूट्यूबर आते थे और वो लोग हमारे यहाँ पे आके अरुणाचल में आके बहुत सारे व्यूज़ लेके जाते थे। तो मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ कि तो बता दो कि हमारे वहाँ पे जो स्कूल होता है, वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स होता है, वहाँ पे जो टीचर का जो सैलरी होता है बहुत कम होता है। तो वहाँ पे मुझे पढ़ाना था क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स को। 4 क्लास था, 2 सेक्शन था, यानी कि दिन में 8 क्लास था। तो 8 क्लास को मुझे पूरा हफ्ता पढ़ाना होता था। तो मैंने वो सब एनालाइज किया और देखा कि सैलरी भी बहुत कम था, ओनली 9,000 या फिर 8,000 था। तो इट वॉज नॉट वर्थ इट। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ही पता है मेहनत बहुत लगती है। तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट मेहनत। मुझे कुछ और चीज़ में अपना लाइफ बनाना था। अगर वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं करके। तो बाहर के यूट्यूबर्स में आके व्यूज़ लेके गए तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ करके। तो मैं भी यूट्यूब में आ गया और मेरा प्राइम फोकस था कि कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाया जाए, ताकि मैं अपना टैलेंट शो कर सकूं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मेरा शुरुआत से सिंगिंग में इंटरेस्ट था। मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी किए और एक भी कॉम्पिटिशन में मैं नहीं जीता, सभी में मैं आउट हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद के ऊपर खुद से काम करना पड़ेगा करके। तो मैंने अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए पब्लिक ओपिनियन वीडियो से शुरू किया था यूट्यूब में। शुरुआत, अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आप लोगों को ना, लेकिन इसका ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग मुझे बाद में रिलेट कर पाओ ना अच्छे से। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना आप लोग ना, प्लीज़ बोरिंग मत होइएगा प्लीज़। कुछ नहीं, पढ़ाई भी कितना करोगे ना। आज इंटरेक्शन प्रोग्राम है, आज मेरे प्रोग्राम की वजह से आप लोगों का क्लास ऑफ है, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। अगर मैं नहीं आता तो आप लोगों का क्लास हो रहा होता। तो इसलिए तो वही है। तो मैंने अपना सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने के लिए मैंने पब्लिक ओपिनियन वीडियो से शुरू किया। मैं नदी के कोनों में जाके इधर पब्लिक प्लेसेस में जाकर मैं पूछता था कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है। मैं पब्लिक ओपिनियन वीडियोस बनाता था। तो वो लोग कई बार मुझे मतलब वो लोग इंटरव्यू देने से रिजेक्ट कर देते थे। मुझे कुछ नहीं बोलना है, शर्म आती है, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ लेना देना नहीं तुमसे, ऐसा करके। तो काफ़ी इंसल्टिंग भी फील होता था। तो ऐसा करके फिर भी मैंने इंटरव्यू वीडियो बनाया, कुछ फनी क्वेश्चन पूछे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो उससे मुझे सब्सक्राइबर्स बेस इनफ मिल गया था। मेरा 10K फॉलोअर्स हो गया था 2-3 महीनों के अंदर। मैंने उस समय यूनिक कंटेंट सोचा था। उस समय यूट्यूबर्स भी अरुणाचल में स्पेशली ज़्यादा नहीं थे, तो मैं ही शायद यूट्यूब कर रहा था उस समय। तो यूट्यूब करके ऐसा करके मैंने जैसे तैसे सब्सक्राइबर्स गेन किया। एंड देन मैंने फिर से जंपिंग मारा अपने सिंगिंग में। मैंने कवर सॉन्ग अपलोड किया था वास्ते करके उस समय 2019 में वास्ते करके कवर सॉन्ग अपलोड किया था। और विद इन अ डे 1 लाख व्यूज हिट किया वो उस गाने में। उसके बाद विद इन 3 डेज 1 मिलियन व्यूज हिट किया उस गाने में। तो मैं कह सकता हूँ कि काइंड ऑफ उस गाने ने मेरा करियर भी बनाया है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो एज ए सिंगर हो, चाहे वो एज एन इन्फ्लुएंसर हो।
तो उस गाने के थ्रू मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन मिली। तो मैं और गाना डालते गया और कवर सॉन्ग्स बनाते गया तब मेरे जब अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए एंड देन आई अगेन शिफ्टेड टू व्लॉगिंग। पहले मैं व्लॉग नहीं करता था, पब्लिक ओपिनियन वीडियो बनाता था, क्योंकि अब यूट्यूब में पहले डायरेक्ट आप फर्स्ट वीडियो ही हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, मेरा नाम लेंसिंग है, ऐसा करोगे ना तो आपको कोई नहीं देखेगा। आपको पहले अपना आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा कि आप हो क्या, आप मतलब लोग आपको क्यों देखेंगे, आपको ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप एक टिकटॉकर ही सही, टिकटॉकर लोग भी बाद में जब कोई होता है जो व्लॉग बनाते हैं ना, उनको एटलीस्ट लोग जानते तो हैं, तब बाद में जाके एक हो जाता है कि हाँ ये इनको मैं जानता हूँ, इनके लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने भी वही किया, मैंने एज अ कवर सिंगर अपने आप को इस्टेब्लिश किया था उस वक्त। तब लोग मेरे बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे कि लेंसिंग का पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है। तो मैंने व्लॉग करना शुरू किया, मैं ट्रैवल व्लॉग्स बहुत सारा बनाया, अरुणाचल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया एंड देन फिर और भी डिफरेंट जॉनर्स में व्लॉग बनाने लगा, जैसे कि फैमिली व्लॉग्स हो गया। पैसा क्यों ना कमा रहा हो, कितना भी फेमस क्यों ना हो, तो बात हर किसी के लाइफ में डाउनफॉल तो आता ही है। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मुझे ये बात बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि काइंड ऑफ डिस्करेजिंग है, बट मैं फैक्ट के बारे में आज बात करूँगा। तो मैंने क्या किया, जब उस समय मैं बहुत कमा रहा सिंगिंग के थ्रू, स्पॉन्सर्स के थ्रू, तो मैंने उन पैसों को सेविंग किया। मुझे जितने भी बेसिक नीड्स थे, जैसे मैंने थार खरीदा, महिंद्रा थार खरीदा और एक एक्सेल 6 कार खरीदा और बाइक्स कावासाकी बाइक खरीदा, जो जितना मुझसे हो सकता था, जो मेरा चीज़ में इंटरेस्ट था, जिसमें मेरा बेसिक इंटरेस्ट था, मैंने वो चीज़ लिया। उसके बाद बाकी बचे हुए पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया। आप सोच सकते हो ना कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कार भी लिया है, महिंद्रा थार लिया है, एक्सेल 6 लिया है और कावासाकी निंजा लिया है। तो उन गाड़ियों को लेने के बाद भी मेरे पास इतने पैसे बचे कि मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करता हूँ। तो ड्यूरिंग द फेज व्हेन आई वाज अर्निंग अ लॉट, तब मैंने उन पैसों को इन्वेस्ट किया। उन पैसों को मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ करके। तो सबसे पहले मैंने एक ज़मीन खरीदा, छोटा सा था उस समय कि 3 साल पहले की बात है, मैंने 10 लाख में खरीदा था और उसी ज़मीन का वैल्यू आज है, अभी मैंने पूछा था कि अभी इसको बेचूंगा तो कितने में मिलेगा, तो उसी ज़मीन का वैल्यू बस 3 साल के अंदर 30 लाख है। मतलब आप सोच रहे हो ना कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा रहता है। तो मेरा वो लाइफ का एक ही रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। अगर फ्यूचर में मान लीजिए भगवान ना करे मेरे फैमिली में कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे किसी से डोनेशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस ज़मीन को सिंपली उसके 3 गुना या फिर 5 गुना प्राइस में बेच सकता हूँ फ्यूचर में जाके, या फिर मैं उसमें रह भी सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में बहुत वो हो जाता है ना, ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है। और सेकेंड थिंग मैंने इन्वेस्ट किया अपने बिल्डिंग में। मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, मेरे बिल्डिंग में अराउंड 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें 5 रूम्स हैं। तो मैं उस बिल्डिंग को रेंट पे देता हूँ, उसमें जुम्बा क्लास है, दुकान है, बहुत सारा चीज़ है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। और वहाँ पे मैंने एक पर्सनली अपना रेस्टोरेंट भी खोल दिया है, KGF करके, क्योंकि एक मेरा इंटरेस्ट था कि रेस्टोरेंट भी खोलूँ करके, तो वो खोल दिया। तो अभी ये पूरा लंबा चौड़ा कहानी बताने का मेरा एक रीज़न यही था कि लाइफ में मैंने जितना भी सोशल मीडिया के थ्रू कमाया, अपने फेम के थ्रू कमाया, उस चीज़ को इन्वेस्ट किया मैंने। और यही चीज़ आप लोगों को भी अपने लाइफ में यूज़ करना है, भले ही आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, क्योंकि डाउनफॉल आपको बता के नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली जिनके पास मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है ना, उनके लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट जॉब क्योंकि आजकल के ज़माने में तो गवर्नमेंट जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतने सारे कैंडिडेट हैं, पोस्ट बहुत कम है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। इसमें मतलब गवर्नमेंट की वीकनेस है, मैं यही बोलूँगा कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कि इतना सीट्स नहीं दे पा रहे। मे बी हम इंडिया पे ज़्यादा ही बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा ही पॉपुलेशन हो रहा है हमारा ना, तो वो भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। तो वही है। तो इसलिए मैं मेरे कहानी के थ्रू आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लाइफ में जब आप अपने प्राइम में होंगे, आप अपने प्राइम में होंगे, जैसे कि आप मंथली 5 लाख 10 लाख कमा रहे होंगे, तो उन पैसों को एंजॉयमेंट में ऐसे वेस्ट मत करना, बहुत ज़रूरी चीज़ों में इन्वेस्ट करना। अभी जो मैंने बिल्डिंग बनाया है, अभी जितना कंप्लीट हुआ है उससे मुझे महीने के 50,000 आराम से आते हैं। और वो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो महीने के 1 लाख आएंगे, और सिंगिंग के थ्रू, शोज़ के थ्रू तो मुझे पैसा मिल ही रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में मेरा यूट्यूब नहीं भी चला, तब भी मैं महीने का 1 लाख तो आराम से अर्न कर रहा हूँ, वो भी घर बैठे बैठे। तो यही चीज़ आप लोगों को भी करना चाहिए लाइफ में। आप जब अपने प्राइम में होते हो किसी भी चीज़ में, उसमें ज़्यादा मेहनत करो, अपने आप को एक्सॉस्टिव क्यों ना कर दो, ज़्यादा मेहनत करो और उन पैसों को सेविंग बस मत करो, इन्वेस्ट करो। सेविंग से बेटर हमेशा होता है इन्वेस्ट।
और आपको सीखना है कि आपको जानना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो रियल एस्टेट ही मैं बोलूँगा। अगर मान लीजिए कि आप लॉटरी जीत जाते हो गलती से, लॉटरी तो कोई भी जीत सकता है, तो आप 1 करोड़ का लॉटरी जीत जाते हो, तो उस 1 करोड़ का समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। आप एक गाड़ी ले लो, ऑब्वियसली 15 लाख का गाड़ी ले लो, 10 लाख का आप घर में जो सामान लेना है ले लो, और कम से कम 60-70 लाख का आप ज़मीन खरीद लो। वही ज़मीन का वैल्यू आफ्टर 5-6 ईयर्स जाके 3-4 करोड़ का होगा। तो ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करने से बेस्ट रहेगा। तो यही है मेरी लाइफ जर्नी। अभी फ्यूचर में मेरा सोशल मीडिया नहीं भी चला, तभी मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। तो आप लोगों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहा हूँ। मेरा मंथली इनकम कितना आता है यूट्यूब से, स्पॉन्सर से मुझे कितने मिलते हैं, सिंगिंग के थ्रू कितना मिलता है, मैंने सभी आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ डाउट्स नहीं रहे होंगे मेरे लाइफ को लेके, और हमारे इन्फ्लुएंसर्स लोगों का लाइफ कैसा चलता है उस चीज़ को लेके कुछ डाउट है? नहीं है ना? है डाउट जोर से? तो वही है मेरा लाइफ यही है। और स्पीच भी ज़्यादा कुछ देने को था नहीं, क्योंकि मैं आज स्पीच भी देने के लिए नहीं आया, मैं बस आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आया हूँ। अपने सोशल मीडिया में लाइफ कैसा चलता है वो आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। और यूजुअली सोशल मीडिया का आज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ में मेहनत करोगे, आपको लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छे हो, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अपना पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ हो। तो मेरा तो इतना ही था। आप लोग कुछ मुझसे अगर पूछना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो, ऐसा करके। चलिए इंटरेक्शन करते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरा स्पीच मुझे लग रहा है कि वीसी सर का मेरे से ज़्यादा लंबा था, ऐसा लग रहा है। If you have any question, please raise your hand. आप लोग वो उधर से हाथ खड़ा हो रहा है सर, उधर से। Please leave mic. ये पढ़ाई के रिलेटेड मत पूछो हाँ। अभी मेरा 2019 में मैंने बीएड किया था, अभी पढ़ाई वो गैपिंग होके 5 साल हो गया है। Please feel free to ask question. This is an opportunity. Okay? सोशल मीडिया को लेके कुछ भी पूछो, मेरे लाइफ को लेके कुछ भी पूछो। हेलो हेलो, आपका नाम? मेरा नाम अनुप राय है। जी। और आपने बोला था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जी। कहीं ना कहीं डाउनफॉल होता है। जी। और आपको क्यों लगता है कि डाउनफॉल होता है? और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन जो है ना आजकल, लाइक सोशल मीडिया में बहुत कंपटीशन है। लाइक ब्लॉगर तो बहुत सारे दिखता है, बहुत सारे दिखते हैं। और कंपटीशन की वजह से ना, मतलब जो अच्छा वो होता है ना, कंटेंट होता है ना, हम नहीं दे पाते। जी। और इसीलिए मुझे लगता है कि डाउनफॉल होता जी। है। और डाउनफॉल ना होने के लिए, कम्पीट करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, आपको भी जबरदस्ती हिंदी, आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, कुछ नहीं। बस अच्छा लगता है, क्योंकि वो हिंदी में फील ज़्यादा आता है ना। इंग्लिश में बोल दे तो देखिए, जब बीसी सर इंग्लिश में बोल रहे थे तब आप लोगों के चेहरे में स्माइल नहीं था। अभी हम हिंदी के बारे में कुछ भी बोल रहे तो आपके चेहरे में स्माइल आ रहा है, तो ये चीज़ अच्छा लगता है, देसी वाला फीलिंग आता है। एंड इन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा पूछा है, इन्होंने खुद भी आंसर भी दिया है कि डाउनफॉल का शायद एक रीज़न ये भी है कि मतलब बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। और आजकल यूट्यूब में ऐसा कंटेंट आ रहा है, जैसे कि मतलब मान लीजिए यूट्यूब काइंड ऑफ ऐसा हो गया है, गार्बेज से भर गया, आप ऐसा बोल सकते हो ना। आजकल लोग थंबनेल देख के क्लिक करते हैं, तो इसलिए कभी कभी हमें भी क्लिक बेट करना पड़ता है, वो बिना ऑप्शन लेस होकर हमें करना पड़ रहा है ऐसा। तो आप बैठिए, मैं जवाब दे दूँ, आराम से बैठिए। दूसरा क्वेश्चन ओके, तो हाँ, सो कहीं ना कहीं ना ये मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करूँगा, बट ऑडियंस की भी गलती है। मैंने अपने खुद के वीडियो में भी नोटिस किया है, जब मैं कुछ अपने ब्लॉग में बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट या फिर बहुत कुछ एजुकेशनल डालता हूँ, तो उसमें व्यूज़ कम आते हैं। लेकिन थंबनेल में अगर कोई मेरे साइड में कोई लड़की है तो उसमें बहुत व्यूज़ आता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी समझना चाहिए। ऑडियंस को अगर ऐसे ब्लॉग पे क्लिक करने लगेंगे तो यूट्यूबर्स भी ऐसे ही ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जाके सबको बाद में पैसा ही कमाना होता है, तो ऐसा होता है। प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा मेन डाउनफॉल का रीज़न ये है कि लोग जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने सोशल मीडिया के बारे में आप लोगों को बताया, मैंने मेरे Looking at the
career in social media, like you said, of course we imagine that it would be very glamorous once we attract a lots of followers and followers, and the viewers. But you know that we will have different kinds of audience. Like we will receive a lot of love from some of them, but at the same time, we might also receive a lot of criticism and hatred, or not hatred exactly, let's say criticism from the audience. So you as a social media influencer, if you receive any, and if you want to become a social media influencer, and if you come across that type of situation, how do we deal with it, especially the criticism? कि मैंने इनको पीछे रोक दिया है मैं रूट साउंड कर रहा था मैंने बस हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिनका दिल कमज़ोर होता है, जो लोग इमोशनली बहुत कमज़ोर होते हैं, जो लड़कियां बहुत जल्दी रोती है, जो लड़के बहुत जल्दी अपने लाइफ से दुख हो जाते हैं, शिट यार इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया I'm so sorry did I just say sorry हाँ oh no इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा करके होता है ना लाइफ में कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप वीक हो जाते हो, जैसे कि एक इंसान के छोड़ के जाने से आप बहुत टूट जाते हो, या फिर किसी के कुछ बोलने से आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हो। तो अगर आप इमोशनली कमज़ोर हो तो सोशल मीडिया आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही बोलूँगा। सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होता है, मतलब आर्मी के लेवल का स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको मैं तो यही बोलूँगा। सबसे पहली बात यह है, और अगर आप फिर भी सोशल मीडिया में आप आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल मैं भी इमोशनली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, बट फिर भी कुछ कमेंट्स ऐसा होता है जो मुझे हर्ट करते हैं। और मेरा सबसे पेनफुल कमेंट मेरे लिए वो होता है जब जैसे बाहर से मुझे आता है लव फ्रॉम सिक्किम, लव फ्रॉम नागालैंड, लव फ्रॉम मणिपुर आता है, तो अच्छा तो लगता है, बट उसके बाद उसमें से एक कमेंट आएगा, कुछ खराब से कमेंट कर देगा मुझे, तुम वीडियो मत बनाओ ये वो करके ना। और उसमें अगर कमेंट किसी लोकल इंसान का होगा, मतलब मेरे ही अपने शहर का, नाम से पता चल जाता है ना कि ये अरुणाचली है, ये पासीघाट का है करके, तो ऐसे आता है तो और ज़्यादा दुख होता है कि अरे अपने ही लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं तो अपने अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरुणाचल को प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर अपने गानों को अरुणाचली गानों को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा करके बहुत दुख होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता। पहली बात तो मैं जब यूट्यूब में कमेंट में जाता हूँ ना, तब कमेंट को मैं जो टॉप वाला कमेंट होता है बस उनको ही पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ फर्स्ट से नहीं जाता। तो नेगेटिव चीज़ों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। आपने गलती से देख भी लिया तो अभी आप उसके बारे में भूल जाओ, आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, आप बस अपने लाइफ पे फोकस करो, और आप इतना बिजी हो जाओ कि वो सब आपको कुछ नहीं लगे। क्योंकि जो लोग आपको हेट कमेंट करते हैं ना, वो लोग वैसे लोग होते हैं जिनके पास लाइफ में करने को कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग पढ़ाई में बिजी हो, आप लोग घर में भी जाके पढ़ना है, आप लोग किसी के वीडियो में जाके खराब कमेंट नहीं करोगे, चाहे वो वीडियो कितना भी खराब क्यों ना हो। आप लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट हो। तो सोचिए जिनके पास उतना टाइम रहता है किसी को जाके हेट कमेंट करने का, तो उनका माइंडसेट कैसा होगा ना। तो ऐसे लोगों से आर्ग्यू करके फायदा ही नहीं है जो आपके आर्ग्यूमेंट को, जो आपके डिबेट को डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये चीज़ सोच के मूव ऑन हो जाता है, बस इतना ही। थैंक यू। तो आपसे बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5 चैनल में गाना गाते हैं, गाना का हमारा प्रोग्राम है ये आफ्टर दिस सेशन ना, मेरा स्पेशल आप लोगों को परफॉर्मेंस दूंगा, तो जो आज स्टूडेंट नहीं आए हैं उनका लाइव कॉन्सर्ट मिस हो जाएगा। और ये फैकल्टीज वाले भी बहुत लकी है, मतलब फ्री में मैंने अपना चार्जेस बताया ना आप लोगों में, कितना चार्ज करता हूँ पर शो, तो वो आज फ्री में होने वाला है। तो एक तीर से 2 निशाना मार दिया इन लोगों ने। तो आप कुछ पूछ रहे थे, मैं पक्का गाऊंगा फर्स्ट सॉन्ग आपको डेडिकेट करते हुए गाऊंगा। हेलो भैया। हाँ जी। मतलब आपको लगता है आजकल मतलब छोटे छोटे बच्चे भी मतलब यूट्यूब के बिना खाना भी नहीं खा सकते, तो और शॉर्ट्स और रील्स देखते तो मतलब इट्स अफेक्टिंग द यूथ स्टैंड्स, मतलब जो वो होता है ना धैर्य बोलते हैं ना, शॉर्ट्स 30 सेकंड्स का होता है, तो वो भी स्क्रॉल करते रहते हैं 30 सेकंड्स, जो उन लोगों के पास पेशेंस नहीं है। तो इज यूट्यूब अफेक्टिंग आवर टाइम स्पेंड लाइक धैर्य? डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोगों को कंज्यूम करता है ना, तो इनका क्वेश्चन अगर किसी को सुनाई नहीं दिया तो ये वही पूछ रहे कि बच्चे आजकल स्पेशली छोटे बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं शॉर्ट्स वगैरह देखने में। तो ये शॉर्ट्स का एकदम श्राप टाइप से है, मतलब क्या श्राप का इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कर्स हाँ कर्स टाइप से है, मतलब स्पेशली हम यूट्यूबर्स के लिए भी, क्योंकि जब से शॉर्ट्स आए हमारे व्यूज़ में भी चेंजेस आया है, डिक्रीज हुआ है हमारा व्यूज़ भी, क्योंकि शॉर्ट्स 30 मिनट्स का कंटेंट होता है और इजी भी होता है ना, तो लोग शॉर्ट्स में घुस जाते हैं। और जो हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इस मणिपाल यूनिवर्सिटी के ब्लॉग के बाद मैं अगले ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ पेलिंग घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसको लोग उतना नहीं देखेंगे उस वाले ब्लॉग को जितना शॉर्ट्स को देखेंगे। तो शॉर्ट्स कहीं ना कहीं एक कर्ज जैसा है सभी के लाइफ में, चाहे वो हमारे लाइफ में हो, चाहे वो बच्चों के लाइफ में हो, चाहे वो ऐसे लोगों के लाइफ में जिनको सोशल मीडिया ने कंज्यूम कर रखा है। तो स्पेशली मैं यही कहूँगा कि उसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। आप भी फ्यूचर में जाकर आप लोग भी पेरेंट्स बनोगे, तो पेरेंट्स का क्या रहता है कि वो लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में और उनको घर का कुछ काम करना रहता है, ये करना रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं फ़ोन अपने बच्चों को दे देते हैं। बच्चे फ़ोन लेंगे तो फ़ोन में शॉर्ट्स देखने में बिजी हो जाएंगे और पेरेंट्स का काम आराम से निकल जाएगा। तो पहले ज़माने में जैसे होता था कि पापा हमको खेती ले जाते थे, हंटिंग, हमारे वहाँ पे हंटिंग होता था उस समय, अभी भी होता है, लेकिन मैं अभी नहीं जाता, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। एक बचपन की बातें हैं, मैं पापा के साथ हंटिंग हम लोग जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, तो ये सब क्वालिटी चीज़ें बहुत सीखने को मिलता था। बट आजकल के मैं एक्चुअली पूरी तरीके से पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करूँगा, ज़माने की वजह से भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया ना, तो लोगों को पैसा कमाना है, तो बच्चों के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वीकनेस बन चुकी है सिचुएशन की वजह से। तो इसके जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी ऐसे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग जाके एक दिन पेरेंट्स बनोगे तो आप लोग अपने बच्चों को वो फ़ोन मत दे देना कि अपना टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम निकाल देने के लिए फ़ोन मत दे देना। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना। अगर आप लोग टीवी भी देखते हो तो सब लोग साथ में देखना, खाना भी खाते हो तो सब लोग साथ में खाना खाना, ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका बच्चा जो है लाइफ में सोशलाइज हो पाएगा। जो ऐसे बच्चे हैं ना, जो वो लोग का हाई चांसेस है कि वो लोग बड़े होकर लोगों से बिल्कुल सोशलाइज नहीं हो पाएंगे। अब आपने ये चीज़ हमारे जनरेशन वाले गेमर्स के साथ भी देखा होगा, गेमर्स लोगों का भी सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल पोर होता है, लोगों से बात करना नहीं आता उनको। कैरी मिनाटी का ही आप इंटरव्यू कोई भी उठा के देख लो, द वे ही टॉक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनरलेस टाइप से लगता है ना, मतलब मैं उनको जज नहीं कर रहा, नहीं उनके लिए कुछ हेट है, लेकिन उनका बात करने का तरीका नॉर्मल, जैसा हम अभी सर से आदित्य सर से बात कर रहा हूँ, तो वैसा उनका नहीं होगा, उनका बात करने का तरीका ही कुछ और होगा, क्योंकि वो उस 4 कमरों से बाहर निकला ही नहीं है। तो सेम चीज़ शॉर्ट्स के साथ भी होता है। तो मैं यही आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जाके कुछ फ्यूचर में चेंजेस ला सकते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करना जो अभी के पेरेंट्स लोग कुछ पेरेंट्स लोग कर रहे हैं। तो ये मैं थैंक यू। Any questions? Yes, sir. सही क्वेश्चन सर हम लोग अगर वो छोड़ते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, इवन इंस्टाग्राम या यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है अभी, वो भी अभी वैसे ही बन गए कि कुछ भी मतलब 30 सेकंड का डांस वगैरह उठा के उसको ट्रेंड में डाल रहे हैं। और जो अभी अच्छे वीडियोस बना रहे थे पहले से, जो ब्लॉगर्स पहले से भी थे, बहुत पहले से बना रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट बना रहे हैं वीडियोस, वो लोग का वीडियोस हम लोग का थंबनेल में आते ही नहीं है मोस्टली। जो ट्रेंड्स अचानक आ जाते हैं, 15 दिन ये ट्रेंड चला, फिर अलग 15 दिन और एक ट्रेंड चल गया, तो वो एल्गोरिथम वैसे बन गया है। तो वो उससे कोप अप करने का कुछ तरीका है, लाइक जो ब्लॉगर्स अभी फ्यूचर में बनने वाले या ब्लॉगर्स के लिए, उससे वो बहुत मुश्किल है उसको कोप अप करना, क्योंकि जैसा आपने कहा यूट्यूब जो उन्हीं एल्गोरिथम को ज़्यादा दिखाएगा जो वो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब बहुत कम केसेस में होता है कि यूट्यूब जो किसी लोकल गानों को प्रमोट करेगा, लेकिन वो लोग बॉलीवुड गानों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब वो एल्गोरिथम की वजह से ऐसा बन गया है ना, जैसे नाम में मिलिंद गावा आएगा, वो दिल में तेरे लिए वाला गाना रील्स था ना, वैसा वाला आएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में दिखाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो वो सब चीज़ को टैकल करने के लिए मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से यही बोलूँगा कि ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ। मतलब हाँ, ये चीज़ ट्रेंडिंग में है बोल के आप भी उसमें घुस जाओगे ना, तो ट्रेंडिंग के साथ आप भी गुम हो जाओगे। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा सोशल मीडिया से रिलेटेड। वायरल होना और फेमस होना में डिफरेंस है। वायरल आप जब होते हो ना, तब आप उतने ही जल्दी गुम भी हो जाते हो, और जब आप फेमस होते हो तो वो आपका फेम कई समय के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं गाना बना रहा हूँ, मेरे गाने में भी उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अभी, मतलब 1 लाख के अबव आ रहे हैं, लेकिन मिलियंस में नहीं पहुँच रहे, क्योंकि मेरा गाना जो है लोकल लैंग्वेज में है। फर्स्ट रीज़न तो ये है, प्लस हिंदी में नहीं है, और दूसरा रीज़न ये है कि
यूट्यूब एल्गोरिथम उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने रूट को पकड़े रखूँगा। मैं अगर लोग हिंदी गानों को पसंद करें तो मैं ज़बरदस्ती हिंदी गाना नहीं करके अपने ही फोक सॉन्ग जो मैं बना रहा हूँ, फोक फ्यूजन, तो अपने ही उस फोक फ्यूजन को पकड़ता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि बाद में लोग जाके उस चीज़ से मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हिंदी गाना तो बहुत लोगों ने बनाया है। तो उस चीज़ पे आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, आप खुद के साथ लॉयल होना पड़ेगा। और आपका जो सब्सक्राइबर बेस है कि आपने लोकल गाना बनाया तो आपका लोकल ऑडियंस है, तो उन ऑडियंस को आपको सेटिस्फाई करता रहना पड़ेगा। उनके लिए सोचो, अब बाकी के लिए मत सोचो। तो मेरे ख्याल से अभी ना सही, तो फ्यूचर में जाकर आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ऑलवेज बी ट्रू टू योर कंटेंट, और ऐसा कंटेंट बनाओ जो आपके लॉन्ग टर्म में जाके काम आएगा। वायरल वाला मत करो, मैं यही बोलूँगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जब हम आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और आधुनिकता अपनी चरम सीमा पे जा रही है, तो जब भी हम आधुनिक दुनिया की बात करते हैं और उसमें हम कैसे बैलेंस क्रिएट करें अपनी सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ, एंड ऑल्सो हाउ टू बी रूटेड विद आवर रूट्स, यू नो, इवन इफ वी आर इंडल्जिंग आवरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। सर यही था मेरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी टफ है, क्योंकि अभी मैं खुद भी डिस्कवर कर रहा हूँ खुद को कि कैसे मतलब पैरेलली लेके चले दोनों चीज़ को ना। तो मेरे ख्याल से आप जितना कोशिश करो सोशल मीडिया चीज़ को भी पैरेलली लेके चलो, अपने लाइफ को भी पैरेलली लेके चलो, और जितना आपका जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग सिक्किम टाउन में रहते हो मान लीजिए, तो हर महीने नहीं ना ही सही, लेकिन हर वेकेशन में अपने दादाजी नाना जी के विलेज में विजिट करो। Okay, Lianjing ji, first of all, thank you for coming to Sikkim Manipal University. Thank you so much for delivering such a productive lecture for our students. Or do you have any message for our students? स्टूडेंट्स के लिए तो वही मैसेज रहेगा, बिकॉज सिंस आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट स्टडीज़, क्योंकि सभी का अलग अलग कोर्सेज है, सभी का अलग अलग अपने पढ़ाई में बिजी है। पढ़ाई तो करते ही रहिए, बट ऑल आई कैन से अबाउट इज देयर मेंटल हेल्थ, कि आप कुछ भी करते हो लाइफ में, पढ़ाई भी करते हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करते हो, तो मेंटल हेल्थ आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपका पीसफुल माइंड बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्ज़ाम भी आता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, क्योंकि वो प्रेशर आपको बाद में आपके लिए ही वो दुश्मन बन के, आपके लिए ही एनिमी बन के आएगा। तो हर चीज़ को ऐसा नॉर्मली लेके चले, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करें। बस पढ़ाई तो करना बहुत ज़रूरी है, बट आप ऐसा मत कीजिए कि दिन भर पढ़ाई करते हो, रूम से बाहर नहीं निकलते हो, आपका माइंड एकदम डल हो जाएगा, आप सोसाइटी के साथ उतना आप अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, मूवीज़ देखनी चाहिए, ट्रैवल कीजिए, सही समय में पढ़ाई कीजिए, और एक दूसरे को मदद कीजिए ज़रूरत के टाइम में। और वही है, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। अप्स एंड डाउन्स सभी की लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया होगा या फिर चल रहा भी होगा, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग इट। इफ़ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो। देन आप लोग भी अप्स एंड डाउन्स के लिए रेडी रहिए, एंड लाइफ को एज अ चैलेंज लेके लाइफ में लड़ते रहिए। आप मणिपाल आए जी, आपने ब्लॉगिंग भी किया, आपने यहाँ का मतलब 2-3 दिन यहाँ पर रहा भी। जी सर। तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहा ये डिपार्टमेंट के बारे में? ओके, मेरा पर्सनल ओपिनियन, सबसे पहले मैं मणिपाल का जो सराउंडिंग है मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। मतलब मुझे यहाँ आके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी कॉलेज के अंदर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जैसे कि एक कॉलोनी होता है ना, जैसे कि सभी लोग जिसमें मिलजुल के रहते हैं, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। स्टूडेंट्स एक दूसरे को मिल रहे थे, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग कोर्सेज़ के स्टूडेंट एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे और ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ का नो डाउट, पढ़ाई के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि नो डाउट यहाँ का पढ़ाई तो अच्छा है ही। पूरे इंडिया में नंबर 17 रैंक में आता है पूरे इंडिया के कॉलेजेस में, और प्राइवेट कॉलेजेस में पूरे इंडिया में नंबर 8 में आता है, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 में आता है। तो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। NAAC NAC के अंदर A+ का रेटिंग मिला है, तो ये तो अच्छा है ही। प्लस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कि अलग अलग स्टेट से आके स्टूडेंट्स लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कॉलेज बस स्टूडेंट्स को वो बस
पढ़ाई ही प्रोवाइड नहीं करता है, बाकी सब चीज़ प्रोवाइड करता है। जिम बोलो, आपका बैडमिंटन बोलो, और आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ बोलो। और जैसे कि यहाँ के फैकल्टीज़ ने मुझे बुलाया, मैं तो पढ़ाई के फील्ड में हूँ भी नहीं फ़िलहाल तो, बट स्टिल मुझे बुलाया ताकि मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँ कि सोशल मीडिया कैसा चलता है, यूट्यूब क्या होता है, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया से क्या अर्न किया लाइफ में, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताने को मौका मिला। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोगों का माइंड जो और शार्प होता है, मतलब और बाकी चीज़ों में भी शार्प होता है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉलेज का। और पढ़ाई के मामले में तो नो कमेंट्स, एकदम अच्छा ही है। तो वही है। थैंक यू सो मच सर।